بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جی، تو پہلا ہم نے سبق پڑھا تھا الدرس الاول میں، ہم نے کچھ مفردات پڑھے تھے اور ایک جملہ پڑھا تھا۔ مفردات میں جو ہم نے نام پڑھے تھے وہ سب نوٹ کر لیجئے، دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں۔ نمبر ایک، سب سے پہلے ہم نے والد کے بارے میں پڑھا۔ عربی میں والد کو کیا کہتے ہیں؟ ابن، والدہ کو امن، بھائی کو اخن، بہن کو اختن، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہم نے پڑھا تھا جوال کے بارے میں پڑھا۔ جوال کسی کہتے ہیں؟ موبائل کو، جو ہم روزمرہ اپنی زندگی میں موبائل کو دیکھتے ہیں۔ تو اب جب بھی آپ موبائل کے بارے میں بات کریں تو اس کو عربک میں اگر نام لے کر اگر آپ بات کریں گے تو آپ کو لفظ بھولے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جوال بھی پڑھا تھا، جوال مطلب موبائل۔ اور اسی طرح ہم نے کپڑوں کے بارے میں پڑھا تھا، ثوبن، ثوبن کیسے کہتے ہیں؟ کپڑوں کو، ثوبن کپڑوں کو۔ اور اس کے بعد ہم نے دوسری چیز پڑھی تھی، ہم نے دوسری چیز اس کے بعد پڑھی تھی وہ حرف جو ان مفردات کے ساتھ مل کر جملے کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ جیسے اب ہاذا، ہاذا کا مطلب کیا تھا؟ یہ، ہاذا کا مطلب یہ۔ تو میں کہتا ہوں یہ والد ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاذا ابن، یہ والدہ ہے۔ اور عورت کے ساتھ ہم نے کیا کہا تھا؟ ہادیہی لگے گا، ہادیہی امن۔ اور اسی طرح یہ بھائی ہیں، ہاذا اخن، یہ بہن ہے، ہادیہی اختن۔ سمجھ میں آئے نا؟ تو ہاذا کو ہم نے جب مفرد اب کے ساتھ ملایا تو کیا بنا؟ یہ ابن۔ والدہ کے ساتھ بنایا ہادی کو، یہ والدہ ہے، یہ والد ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اور اسی طرح ہم نے پڑھا تھا انتا اور انا، انتا اور انا۔ جی، انا، انا کا مطلب کیا پڑھا تھا ہم نے؟ انا میں، اور انتا آپ۔ جب اگر آپ عورت کو بلا رہے ہوں، کسی لڑکی کو بلا رہے ہوں، والدہ کو بلا رہے ہوں، اور یا اپنی سسٹر کو بلا رہے ہو تو کیا کہیں گے؟ انتی۔ اگر کسی بھائی کو بلا رہے ہو تو انتا، ٹھیک ہے۔ انا کا مطلب کیا ہے؟ میں، انتا آپ۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جب مفردات کے ساتھ ملائیں گے تو یہ جملے بن جائیں گے۔ تو ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ انا میں، انتا آپ، ہاذا یہ۔ اور اسی طرح من، من، من کسے کہتے ہیں؟ کون، من کون۔ دیکھیے اب ہم جملہ بناتے ہیں، میں کہتا ہوں من انتا، من انتا، میں بریرہ سے کہتا ہوں من انتی، من انتی۔ تو بریرہ مجھے کہتی ہے انا بریرہ، انا بریرہ، تو بات مکمل ہوگی، میں بریرہ ہوں۔ تو من کا مطلب کیا ہے؟ کون، اور انا کا مطلب میں۔ اسی طرح میں زکوان سے کہتا ہوں من انتا، تو زکوان کہتا ہے انا زکوان، انا زکوان، تو بات پوری ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ چیزیں بھی یاد کرنی، یاد کیا کرنے والی ہیں؟ ہاذا یہ، انا میں، انتا آپ، من کون، من کون، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جب جملے کے ساتھ لگتی ہیں تو جملہ کیا ہوتا ہے؟ پورا ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے سبق دہرایا ہے، جو آج ایک دو ساتھی نئے آئے ہیں، ایک دو بچے نئے آئے ہیں، تاکہ وہ بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ تو اسی طرح ہم نے پھر سبق میں پڑھا تھا، دیکھیں ہم نے جو پڑھا ہے اس کی مشق بھی آ گئی ہے۔ انا ابراہیم، میں ابراہیم سے پوچھتا ہوں من انتا، ابراہیم کہتا ہے انا ابراہیم۔ پھر ابراہیم کہتا ہے ہاذا ابی۔ اور ایک اور چیز، ہاذا، انتا، انا، من کے ساتھ ایک اور چیز، کہ جب ہم مفرد کے آگے آخر میں یا لگائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا میری چیز۔ جیسے کہتا ہوں یہ والد، کیسے کہتے ہیں؟ ہاذا ابن۔ میں کہتا ہوں یہ میرے والد، ہاذا ابی۔ یہ فون، ہاذا جوال، یہ میرا فون، ہاذا جوالی۔ یہ والدہ، ہادیہ ام، اور یہ میری والدہ، ہادیہ امی۔ تو امید ہے یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی، یہ تو پہلے سبق تھا۔ تو اب
जो जुमला हमने पढ़ा था उसके मुतालिक भी थोड़ी सी मशक कर लेते हैं। अना उहिब्बु, अना मतलब मैं, उहिब्बु मोहब्बत करता हूँ, अबी व उम्मी, जितना हमने पढ़ा है इसके मुताबिक अब आप खुद जुमला बना सकते हैं इस तरह का। मैं अपनी वालिदा और वालिद से मोहब्बत करता हूँ, अना उहिब्बु अबी व उम्मी। इसी तरह जब आपको पता है भाई को अखुन कहते हैं, बहन को उख्तुन कहते हैं, तो आपने कहना है मैं अपने भाई और बहन से मोहब्बत करता हूँ, तो क्या कहेंगे? अना उहिब्बु अखी व उम्मी, मैं अपने भाई अपनी बहन से मोहब्बत करता हूँ। तो देखिए अब जितने मर्जी जुमले बना लें इनसे, ठीक है। मैं अपने फोन से मोहब्बत करता हूँ, अना उहिब्बु जवाली, देखिए जुमला बन गया। हमने कपड़ों के बारे में क्या पढ़ा था? सौबुन, मैं अपने कपड़ों से मोहब्बत करता हूँ, अना उहिब्बु सौबी, अना उहिब्बु सौबी। तो इस तरह जुमले बनाते चले जाएंगे अगर हमें ये चीजें याद होंगी। हाजिही का क्या मतलब, हादा का क्या मतलब, मन का भी इस्तेमाल करते हैं, अना का क्या मतलब है, अंत का क्या मतलब है, फिर हम जुमले, हमें मुफरदात याद होंगे, और मुफरदात याद करने के बाद हमारे लिए जुमला बनाना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। चले, इतना तो हमने पहले पढ़ लिया था, और जो अभी आए थे उनके लिए मैंने दोबारा दोहराया है सबक, और ये मश्क आप हजरात कर कर आए होंगे। मश्क कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मश्क में पहले जो अल्फाज हैं वो याद कर लें। असदुन, असदुन, देखिए यहाँ पे तस्वीरें बनी हुई ना। असद किसे कहते हैं? असदुन शेर, असदुन शेर को, असदुन किसे कहते हैं? शेर, ठीक है। आगे असद किसे कहते हैं? शेर। अब कहते हैं ये शेर है, कैसे कहेंगे? हादा असदुन, ठीक है। और ये मेरा शेर है, हादा असदी, ये मेरा शेर है, ठीक है। तो इस तरह आपने जुमले बनाते जाना। देखिए आगे, देखें आगे आ गया फसुन, फसुन, फस कहते हैं कुल्हाड़ी को, फस कहते हैं कुल्हाड़ी को। देखें यहाँ पर वैसे इन्होंने कासुन लिख दिया है, ये कासुन नहीं है, ठीक है, ये क्या है? फसुन है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है फसुन, फसुन, ठीक है। फसुन किसे कहते हैं? कुल्हाड़ी को। ये कुल्हाड़ी है, हादा फसुन, ये मेरी कुल्हाड़ी है, हादा फसी, ठीक है। इस तरह आपने जुमले बनाने। इसी तरह मैं अभी सुनूंगा, मश्क जब करेंगे हम, तो फिर मैं आपसे सुनूंगा, आप ध्यान से बैठिए और इसको दोहराते रहें साथ साथ। इसी तरह समाउन, समा किसे कहते हैं? समाउन आसमान को, देखिए नीचे बनाया हुआ तस्वीर भी बनाई हुई है, समाउन आसमान को कहते हैं, ठीक है। हादा, हादा समाउन, ये आसमान है, हादा समाउन, ये आसमान है। यहाँ पर एक कायदा और बताता हूँ आपको, सबने ज़हन में रखना है, ठीक है। देखिए हमने पीछे पढ़ा था, हादा अबुन, वालिद के साथ, लड़के के साथ जब हम लगाते हैं हादा तो क्या कहते हैं? हादा। लड़की के साथ, औरत के साथ जब हम लगाते हैं तो क्या कहते हैं? हादी ही, ठीक है। एक फर्क तो ये था ना। और दूसरी वो जगह जहां पर हम हादी ही लगाएंगे, हादा नहीं कहेंगे, ठीक है। ये बहुत अहम जो है वो पॉइंट है, इसको सब नोट करें। जिस मुफरत के आखिर में हमजा होगा, जिस मुफरत के आखिर में हमजा होगा, हम उसके साथ क्या लगाएंगे? हादी ही लगाएंगे, ठीक है। या इस तरह कह लें, जिस मुफरत के आखिर में गोल ता होगी, शाइमा आप ये ना करें, और जिस मुफरत के आखिर में गोल ता होगी, गोल ता होगी, तो उसको क्या कहेंगे हम? तो उसमें हम क्या कहेंगे? हादी ही कहेंगे, हादा नहीं कहेंगे। जैसे कि के बारे में क्या कहते हैं? हादी ही उम्मी, ठीक है। और इसी तरह घड़ी को अरबी में कहते हैं साअतुन, साअतुन, सीन अलिफ सा आइन और ता दो पेशतुन, साअतुन। तो इसको क्या कहेंगे? ये घड़ी है, हादिही साअतुन, ठीक है। हादिही सा, हादिही क्यों कहा? क्योंकि इसके आखिर में क्या आ गई है? गोल ता, ये इसलिए इसको हादी कहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मश्क का कुछ हिस्सा हो गया है। तो आज हमने तीन मुफर्रदात पढ़े हैं, असदुन का, फसुन और समाउन। यहाँ पर जो कासुन लिखा है, कासुन मैंने आपको पहले दिन बताया था, कास किसे कहते हैं? गिलास को कहते हैं, हादा कासुन, कास किसे कहते हैं?
गिलास को कहते हैं, कास गिलास को कहते हैं। ठीक है, चलें अभी देखें, इशारा करके बताएं, ये मश्क हम कर रहे हैं। हादा, ये कौन है? हादा अबी, और हादिही उम्मी। ठीक है, अब आपने मुफरदात याद करने हैं। आज कितने मुफरदात हो गए हैं? असदुन एक हो गया है, और फसुन दो हो गए हैं, इसी तरह समाउन तीन हो गए हैं, और ये भी याद करें, कुतुबुन, कुतुबुन किताब की जमा कुतुब है, कुतुब किताब की जमा है। तो बहुत सारी किताबों तो क्या कहते हैं? कुतुबुन। बहुत सारी किताबें हो तो क्या कहते हैं? कुतुबुन। और ये जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, इसे क्या कहते हैं? मदरसा। इसे क्या कहते हैं? मदरसा। ठीक है, मदरसे की शक्ल बनी हुई ना, तो ये मदरसा है। तो अब हादा के साथ यहाँ हम क्या लगाएंगे? हादा कुतुबुन, और मदरसा को मदरसा कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? हादिही मदरसातुन, हादिही मदरसातुन। तो कितने मुफरदात हो गए? 5 मुफरदात हो गए। और छठा मुफरद क्या है? अर्जुन। ये देखिए, अर्जुन जमीन का नक्शा बनाया हुआ है ना। अर्जुन, अर्ज किस कहते हैं? जमीन को। अर्जुन जमीन को कहते हैं। तो कितने मुफरदात हो गए? असदुन शेर एक, फसुन कुल्हाड़ी, समाउन आसमान, अर्जुन जमीन, और इसी तरह मदरसातुन मदरसा, और कुतुबुन किताबें। कुल 6 मुफरदात हमने याद किए हैं, और सबने ये नोट करना है, सबने नोट करना है। कल को सबने ये लिख कर लेकर आ रहे हैं, और मैं चेक करूंगा, बल्कि ग्रुप में सबने लिख कर तस्वीरें सेंड करनी है। ठीक है, वरना सबक आगे चलाऊंगा। अगर आपके अंदर आपने इस तरह नहीं किया, तो मैं समझूंगा आप पढ़ना नहीं चाह रहे, फिर मैं ऐसे इस अंदाज से नहीं पढ़ाऊंगा, इतनी मेहनत नहीं करूंगा, मैं सिंपल से पढ़ा दूंगा। ठीक है, अगर आपने मेहनत ना की। तो आज हमारा पहला दर्स मुकम्मल हो गया, पहला दर्स हमारा मुकम्मल हो गया। इसमें हमने हर्फ कितने पढ़े हैं, और मुफरदात कितने पढ़े हैं, उसको मैं एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ। सबसे पहले मैं हर्फ बताता हूँ, हमने हर्फ कितने पढ़े हैं। हादा पढ़ा है हमने, अना पढ़ा है, अंता, मन, अंता, मन, मन, मन किसे कहते हैं? कौन। इसी तरह या निस्बती जब मुफरद के आखिर में लग जाए तो चीज क्या होती है? मेरी हो जाती है। चीज क्या होती है? मेरी हो जाती है। तो ये 5 मुफरदात पढ़े हैं आपने। ठीक है, 5 हर्फ पढ़े हैं। और मुफरदात कितने पढ़े हैं? यानी जो नाम है, जो चीजों के नाम है, वालिद, अबुन, उम्मुन। ठीक है, इसी तरह जवालुन मोबाइल, सौबुन कपड़े, और समाउन आसमान, अर्जुन जमीन, फसुन कुल्हाड़ी, असदुन शेर, कसुन गिलास, कसुन गिलास, कुतुबुन किताबें, मदरसतुन मदरसा, मदरसतुन मदरसा। तो ये चीजें मैंने आपको कुल, ये नाम 11 बनते हैं, और मुझे हर बच्चे की कॉपी पर ये 11 नाम मौजूद हों, और उसको फर फर आते हों। जिस जुमले को मैं बनाने को कहूँ, फौरन से उसको बना ले। ठीक है, तो ये आज हमारा पहला दर्स मुकम्मल हुआ है, उसकी मश्क मुकम्मल हुई है। अभी हम उसको हल भी करेंगे, फिर हम आगे, ये दुआ है, कल को हम दुआ याद करेंगे, कल को हम दुआ याद करेंगे, और आप खुद ही दुआ को याद कर लेंगे, अगर आपने ठीक से ये अल्फाज याद कर लिए तो।